जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर हिम्मत देने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि गुरु जी कह रहे थे कि जो कोई भी बीमार है वो मेरे स्वरूप के साथ जल प्रसाद लगा के 7 बार पिए और गुरु जी ने उसकी बीमारी ठीक करेंगे और यह उनको ब्लेसिंग देंगे। संगत जी, मैंने ऐसा ही किया, मुझे को बहुत फ़र्क है। आप भी ऐसा ही करेंगे। गुरु जी ने मुझसे ये कहा है कि बेटा, ये सत्संग तू अपने आगे संगत के साथ शेयर कर ताकि उनके भी दुख दर्द कम हो। बस मैं यहीं पर अपना सत्संग विराम देना चाहूँगी और लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਲਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਰੋਡ ਕੱਚੇ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਉਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਚੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿੱਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ 300 ਵਾਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਏ, 300 ਵਾਰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਫੋਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 300 ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 300 ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਭੂਈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ, ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਮ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਏ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਨਕਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਕਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे पापा, जय गुरु जी। आज संध्या वेला का शुक्राना सत्संग कर रहे हो, शुक्रवार के दिन 23 तारीख। मेरे प्यारे पापा, शुक्राना मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे पापा, शुक्राना गुरु जी के प्यारे संगत के भी जय गुरु जी। मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं पहले जो धरती में चलता है मैं उनको विश्वास नहीं करती थी। जो नहीं देखता है, दिखाई देता है, नहीं तो हाथ में पकड़ आता है, मैं उनको विश्वास करती थी पहले, क्योंकि मैंने बहुत धोखा खा चुका था। तो मैं इंसान से विश्वास करना ही छोड़ दिया था। तो गुरुपा ऐसा ही है, हमें छूने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन गुरुपा हमारे साथ है। शुक्राना गुरुपा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। गुरुपा आपने हाथ पकड़ा है मेरा, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। सारे संगत आप बहुत किस्मत वाले हैं, भाग्य वाला है। मेनका आंटी जी भी बहुत भाग्य वाले हैं, क्योंकि आप हमारे सारे सत्संग शेयर करते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगता है। हम तो सुनने का भी टाइम नहीं मिलता है, आप तो शेयर करने के लिए करते हैं। शुक्राना मेनका आंटी जी को भी। मैं 17 तारीख को उस दिन पैसे सेंड करने गई थी, तो गुरुपा ने मुझे बुलाया था। तो बहुत दिन पहले ना गुरुपा ने मुझे बोला था, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, सफ़ेद चोले में आ रहा हूँ बोल रहे थे। तो मैं कहाँ ला के रखूँ गुरुपा को, क्योंकि यहाँ पर तो वो लोग मानते नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने उस दिन छोड़ दिया। वो संगत मैम ने बोला था, गुरु जी का कैलेंडर 100 रुपये ले जा बोला था, मैंने छोड़ दिया था। तो मुझे 2-3 बार कैलेंडर स्वरूप का मुझे सत्संग सुनाया गुरुपा ने, मुझे उस टाइम में नहीं समझ आया था। संगत में आज मैं तुझे एक स्वरूप देता हूँ, पीले चोले में हमारे पास आए गुरुपा, मैं देता हूँ बोला। वो स्वरूप भी छुप गया, 2 स्वरूप आज तक छुपा हुआ है। तो वो कैलेंडर स्वरूप मैंने लेके आया, गुरुपा के वो सफ़ेद चोले में था। वो लाने से भी पहले मुझे गुरुपा ने एक बात सुनाए थे, और सिखाए भी है, सुनाए भी है। उसको सुनने के से हम सीख सकते हैं। जैसे उनके घर में कोई गुरुजी को मानते नहीं थे, सिर्फ वही मानते थे, और सारे घर के बंदे चले जाते थे काम में, तो गुरुजी के स्वरूप निकालते थे, गुरुजी से बात करते थे, गुरुजी को सेवा करते थे, सब कुछ करते थे। मुझे वो सुनाया। तो कैलेंडर स्वरूप तो पैकिंग है, तो सारे घर से चले जाते हैं,
तो गुरुजी को मैं निकालती हूँ, गुरुजी से बात करती हूँ, गुरुजी को भोग लगाती हूँ। जो भी होता है, पानी होता है, कोई भी होता है, भोग लगाती हूँ। ऐसे कर रही थी। अचानक कल क्या हो गया, गुरुजी की हुक्म होता है, गुरुजी की आज्ञा होता है। कल सत्संग शुरू हो गया तो एक ना बोतल पानी, सिलो वाला पानी था, तो मेरे सामने में रख दे बोला, मैंने रख दिया। फिर बाद में चाय का भोग लगाया, बिस्किट का भोग लगाया। मैं काम करती रही, सत्संग चलते रहे, 1 आवर का। अब ये तो जल प्रसाद बन गया। पानी ऐसे पानी था तो वो तो जल प्रसाद बन गया। अब मैं अंदर रखती हूँ, बोला गुरुपा ने बोला नहीं, इसको नहीं रखना। तो एक यहाँ पर मैं जहाँ प्ले एरिया में है वहाँ पर आती हूँ, तो वहाँ पर एक था जो उसको पता नहीं बीमारी था क्या था। गुरुपा को तो सब पता होता है, हमें नहीं पता होता है। तो वो जल प्रसाद बन गया था, तो गुरुपा ने बोला ये जल प्रसाद उसको ले जाके दे देना। तो कभी कभी आता है, बहुत कम आता है। तो मैंने कहा गुरुपा वो आएगी भी मैं लेके जाऊंगी, तो वो आएगी तो ठीक है, नहीं आएंगे तो मैं पी लूँगी। वो आ गई, मैंने उसी को दे दिया। गुरुपा ने कल मुझे सेवा दिया, शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे पापा शुक्राना। आपने ही मुझे सिखाया था, मुझे तो दिमाग ही नहीं था, गुरुपा ने ही सिखाया था मुझे। थोड़े दिन पहले ना, अब तो इतना साल हो गया गुरुपा सिखा रहे हैं मुझे, कुछ कुछ समझ आता है। तो गुरुपा ने मुझे थोड़े दिन पहले बोला तू अपना फैसला खुद ले लेना, झूठ सच ये अलग करना, और तुझे जो सही लगता है वो करना, जो गलत लगता है वो नहीं करना। तो मुझे ना बहुत ऐसा रोने का दिल किया, गुरुपा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, आप ही कर लीजिएगा बोल के मैं उस दिन रात को रोई। तो गुरुपा मुझे सब कुछ सिखाते हैं। अब गुरुपा तो हमारे अंदर ही रहते हैं, तो अंदर अंदर से मुझे काउंटिंग सिखाते हैं, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सिखाते हैं। ये हिंदी तो मुझे दिल्ली में आके सीखा हूँ, वो भी गुरुपा की मर्जी से ही सीखा हूँ। मैं तो किसी काबिल ही नहीं था, वो तो गुरुपा ही चला रहा है अभी भी। अगर गुरुपा नहीं चलाते तो मैं दुबई बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं था, मेरे पास कोई भी बजट नहीं था। मैं बिना बजट के गुरुपा ने दुबई लेके आया। और मैं जैसे मुझे जब से गुरुपा कहीं भी लेके गए, गुरुपा नहीं लेके गया। जब से मैं आउट कंट्री रहने लगे 2014 में मुझे गुरुपा ने निकाला है, इसी मई के महीने में 14 मई 2014 से ही मैं इंडिया से बाहर रह रही हूँ। गुरुपा ने ही निकाला है उस टाइम। अभी मुझे याद आ रहा है सब कुछ, ये गुरुपा धीरे 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 याद दिला रहा है। मेरे प्यारे पापा शुक्राना शुक्राना, आप इतना प्यार करते हो, शुक्राना। मैं आज के लिए इतना ही, फिर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।